Good morning, students. Today we are going to study of class 8 Honeydew English के Honeydew lesson 5 The School Boy. That is a poem written by William Black. Uh, as you as you see in your book, The School Boy. The School Boy is a very famous poem, and this poem is through a light of the schoolboy. The mindset of a schoolboy, he is unhappy. He loves outdoor life. He hears the birds sings, the blowing of airs, and horns by the huntsman pleases him. He wants to enjoy the company of the skylark, who was a bird. He also likes to fly in the sky, and he can enjoy or find such joy only on a summer morning instead of living like a free bird. The wise made to go to school. It makes him sad. He hates going to school because of his cruel old teacher. There, the small children spend the day from morning to evening and get disappointed. Now, means the boy who was here given the school boy means the school boy also feels his unhappy life. He always sad because of he enjoy after seeing a birds that skylark or enjoy the hear the horns of a huntsman. Those are pleasing him. Now, read the poem here given by William Blanks. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Means the poet say that I love to rise means the school boy say about that means school boy जो कि छोटा बच्चा जो है काफ़ी जो है जस्ट लाइक एज ए बर्ड मीन्स पटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ जो कि पूरी तरह से खिले हुए नहीं होते हैं और whom required or need of fresh air, sun, and another way so that they developed their mind or developed developed their growth their body same way I love to rise in a summer morn. Morn means here morning. Morn means morning. So द स्कूल बॉय से दैट आई लाइक टू राइज इन समर मॉर्निंग मैं जो है सुबह में समर की मॉर्निंग में जो है उठना पसंद करता हूँ वेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री मीन्स प्रत्येक वृक्ष पे जब पक्षियाँ स्वतंत्र रूप से गाती हैं द डिस्टेंस हंट्समैन winds his horn and the skylark sings with me means the distance यानी कि कुछ दूरी पर huntsman winds his horn means आवाज sounds means blow his horns means whistle जब वह जो है हो जाता है and the skylark sings with me oh what sweet company sweet means here मधुर स्नेह युक्त means and the skylark एक प्रकार की बर्ड्स होती है जो कि गान सिंच करना पसंद करती है तो स्काइलर की कंपनी के साथ जो है स्कूल बॉय जो है पसंद करता है इन दिस वे ही इंजॉय द हियरिंग आर लिसनिंग द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स आर स्काइलर्स आर हंट्समैन विसिल एंड सो ऑन नेक्स्ट but to go to school in a summer morn oh it drives all joy away. Under a cruel eye outward, the little ones spend the day in singing and dismay. Dismay means, do you know, dismay means hopelessness, means nirasha. Means, but to go to school in summer morn. कितना बुरा लगता है when a school boy अवेक इन द मॉर्निंग जब सुबह जगना पड़ता है और उसे जो है स्कूल जाना पड़ता है जबकि वह जो है एंजॉय करता है इन the listening of the song of birds and others way so स्कूल जा but to go to स्कूल जाना in a summer morning मीन्स गर्मी की सुबह में स्कूल जाना
हो इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ड्राइव्स अवे मीन्स दूर करना, तो वह ड्राइव्स अवे यानी कि इंजॉय से, आनंद से क्या कर देता है, यह दूर कर देता है। कौन दूर कर देता है, स्कूल। सो अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, अंडर द क्रूएल आउटवर्न मीन्स क्रूएल आइज ऑफ द टीचर, जो ओल्ड टीचर से उनकी आइज को कह रहा है कि इन द व्यू ऑफ द स्कूल टीचर वी नेवर। नेक्स्ट, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन सिंगिंग एंड डिसमे। लिटिल वंस मीन्स छोटा, जो खर्च करता है पूरा दिन अपना इन सिंगिंग गाने में, अब वह क्या हो जा रहा है, वह जो है व्यतीत कर रहा है इन होपलेसनेस, अपनी निराशाओं में। मीन्स ए स्कूल बॉय ऑलवेज spent his life or the day in the school, that times he is living in dismay or hopeless। निराशा में वह जो है जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी कि पूरा दिन जो है निराशा में व्यतीत करता है। इन दिस वे then at times I droop in sleep and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower। Means in the third stanza the schoolboy say that then at times I drooping sleep, तब मैं अपनी पूरी ड्रूप करता हूँ अर्थात खोया रहता हूँ, किस पे, सीट पर बैठा हुआ, एंड स्पेंड्स मेनी एंड एनएक्सियस आवर, और चिंताओं के में अपना पूरा समय जो है व्यतीत कर देता हूँ। एनएक्सियस मीन्स वरी, एनएक्सियस मीन्स वरीडनेस, निराशा या चिंताओं में। सो नार इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, न तो मैं अपनी पुस्तकों में जो है आनंद ले सकता हूँ, और नार सीट इन लर्निंग बोर्ड, और ना ही जो है कुछ सीखने में ही जो है मैं अपना मन लगाता हूँ। वर्न थ्रू विथ द ड्रियरी शावर, सो पूरे मैं दिन जो है उनको ही अर्थात जॉय को खोजने में ही व्यतीत करता हूँ, और मेरा पूरा जो है दिन जो है निराशाओं में ही जो है खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट, हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। मीन्स हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कैसे कहा जा सकता है कि वेन ए केज्ड बर्ड, जब किसी पक्षी को जो है कि पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और जब वो उसका जो है स्वभाव होता है, उसका जन्म भी होता है सिंगिंग एंड फ्लाइंग एंड टेक फॉर इंजॉय, सेम वे द स्कूल बॉय कंपेयर विथ ए बर्ड, वह जो है एक बर्ड से अपनी जो है कंपेयर करता है, केज्ड बर्ड से, जो कि एक पिंजरे में बंद होती है और वह सब कुछ अपना यूथफुल जो है भूल चुकी होती है। मीन्स हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कैसे एक पक्षी जो है इंजॉय कर सकती है जिसका जन्म ही जो है जॉय के लिए हो सकता है। सीट इन ए केज एंड सिंग मीन्स पिंजरे में बैठी रहती है और वह जो है गाती है। हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फियर्स एनॉय, कैसे, वैसे ही ए चाइल्ड मीन्स स्कूल बॉय वेन ही फियर्स, जब वह भयभीत रहता है, इन द क्रूएल आई बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, किंतु उसके कोमल, टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट, विंग्स उसके सॉफ्ट विंग्स, एंड फॉरगेट, और क्या होते हैं, और भूल जाते हैं, फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, अपने जो है युवावस्था के गीतों को जो है वह भूल जाता है। मीन्स ए लवली बर्ड्स दैट इज इंजॉय इन द स्प्रिंग सीजन, मीन्स बसंत ऋतु में पक्षियाँ जो है अपना आनंद लेती हैं जब वो जो है केज में अर्थात पिंजरों में बंद हो जाते हैं, एंड ही लूज देयर वेन दे लूज देयर बर्ड्स लूज देयर फ्लाइंग आफ्टर समटाइम्स दे कैन नॉट फ्लाई, सो ओ फादर एंड मदर। At last, in the last stanza, the poet requests to his father and parents of the school boys, स्कूल बॉयज के पेरेंट्स और फादर से जो है वह रिक्वेस्ट करते हैं कि डोंट suppress or repress, the poet calls upon the parents not to be so harsh to children, मीन्स बच्चों पर इतने जो है कठोर या कड़ा मत होइए। स्कूल गोइंग किड्स आर एज ए डेलिकेट एज बर्ड आर
flowers or birds means स्कूल जाने वाले बच्चे जो क्या होते हैं वे जो है किड्स के समान सॉरी बर्ड्स के समान या पक्षियों के समान जो है क्या होते हैं बिल्कुल जो है कोमल होते हैं उनके प्रति जो है हार्श नहीं होते हैं। दे नीड फ्रेश एयर फ्री मूवमेंट टू ग्रो हेल्दी एंड हैप्पी। उन्हें जो है आवश्यकता होती है फ्रेश एयर फ्री मूवमेंट्स की फ्रेश एयर फ्री मूवमेंट टू ग्रो हेल्दी एंड हैप्पी। ग्रो हेल्दी एंड हैप्पी मीन्स प्रसन्न होने और इंजॉय करने की या स्वस्थ होने की जो है मूवमेंट होता है। कीपिंग देम अंडर एक्सेस विल मेक देम अनहैप्पी। और उन पर जो है अतिरिक्त जो दबाव होता है अतिरिक्त प्रेशर डालने पर उन पर क्या हो सकता है मेक देम अनहैप्पी। उन्हें जो है निराशाएं हो सकती है। सो बाय सारो एंड केयर्स जिसमें उसमें जो है निराशाएं हो सकती है। सो इफ ए प्लांट डिनाइड एयर एंड इज केप्ट इन डार्क। यदि किसी को भी जो है किसी भी प्लांट यानी कि पौधे को अगर हम इनकार करते हैं उसको क्या इनकार कर देते हैं किसमें एयर और सन से अगर कोई भी पौधा नहीं लेता है तो हाउ दे डेवलप कैसे वह पौधा जो है डेवलप कर सकता है ग्रोथ कर सकता है। तो ग्रोथ करने के लिए उसे जो है जैसे एयर सन और फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है। सेम वे ए किड्स आर ए स्कूल बॉय नीड्स टू enjoy of the nature. So it is very necessary for every parents every children are the every man who lived in the world and they to not to suppress or not to praise their kids those who are going to school. There are many suggestions from the poem. And last, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear. जब उन पौधों को जो है एयर सन और वाटर्स नहीं मिलते हैं तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं या जो है कैसे हम कह सकते हैं हाउ शैल द समर एराइज इन जॉय। कैसे समर जो है इंजॉय कर सकती है कब आर द समर फ्रूट्स अपीयर। और कैसे जो है समर्स में जो है फ्रूट्स वह दिखाई दे सकते हैं। सेम वे बच्चे को भी जो है यानी कि माइंड को भी उनके माइंड्स को डेवलप करने के लिए जो है उचित वातावरण की जो है आवश्यकता होती है। सो एवरीवन शुड इट इज नेसेसरी टू enjoy are free to their children to enjoy their life and their nature. So that is okay. And once again I read so what is the rhyming scheme of the poem only see you rhyming scheme. What is the rhyming scheme of the poem? तो rhyming scheme of the poem you find out rhyming scheme of the poem A, B, and B. That is the rhyming scheme you find out in the each stanza of the poem. Means first stanza is that last words of the poem more last words of the each lines, and second tree, third lines here given horn, and fourth line given me, and last company. So you find out suppose A, B, and B. You find out in the second stanza same rhyming scheme as A, B. That is the rhyming scheme of the poem. And morn with horn, that is the rhyming word. Tree with me and company, that is the rhyming word. And the same way you find out in the second stanza that more again in the second stanza you find out the rhyming scheme or rhyming words in the second stanza more. Okay, last two words of the each lines away, next outward, same is the rhyming word, and next away,
day, and dismay, and dismay. So these are the rhyming words. So you find out A, B, and B. So A, B, again A, B, B. That is the follow the rhyming scheme of the poem. So whole stanza, in the whole poem you find out every stanza the same rhyming scheme. So that is the rhyming scheme of the poem. So in this way, this chapter or this poem has been ended, giving a suggestion to every parents and every one to uh, follow the poem and enjoy of the school boys. Those are free and in to growth of their life. Okay, thanks.